With this, we'll be beginning our orientation session for Kalam Batch 1 for CLAT 2026. So, first of all, thank you everyone, students and parents, for trusting this organization. This is the seventh year. ये सातवां साल है जिसमें हम लोग इस साल कलाम बैच 1 को लेकर के आए. Generally, we have 5 batches. We have 4 Kalam batches. This is the first Kalam batch for CLAT 2026. And then there is also a Super 40 batch. जो हमारा कलाम बैच 3-4 ईयर मिड प्रिपरेशन का राउंड हम लोग लॉन्च करते हैं. एंड दैट्स हाउ फ्लेम्स functions. Uh, of course, I totally forgot. So, my introduction, I'm Siddharth, and I am the critical reasoning faculty at Flames. I've been here for past 3 to 4 years. With me, my co-moderator is Tanishka, my friend and colleague, and she is the English grammar faculty at Flames. यहाँ पे you can also see different faces. Nikhil sir is here. Nikhil sir is our QT faculty. Shruti is here. Shruti is our legal faculty. And Shreyas is yet to come. He's got somewhere. So he'll be joining in a minute. And he is the English RC faculty. Sachin sir, he could not make it. He is the current affairs faculty. And of course, last but definitely not the least, Shanu Bhaiya, जो critical reasoning and legal के classes लेते हैं. But before we get into results and how we have functioned, I'll hand over the virtual dash to Tanishka. She'll take you through the life at Flames. Tanishka, over to you. And now I shall take you to how your life would look like in Flame students. So, students and dear parents, when we say that Flames is different, we mean that it is different from any other coaching institute that is running online or that is running offline. And with this, now I move ahead to introduce our results with all of you. Do not be surprised when we say that we have 85% as the selection rate for our past 6 years. Now, let me take you to the result of past years. As everyone can see, we have had 32 out of 40 selections in the year 2021. In the year 2022, we have had 56 out of 66 students, 56 selections out of 66. In the year 2023, we have had 64 selections out of 80 students. In the year 2024, we have had 81 selections out of 96. And we are extremely happy to say that we have had more than 80% selection rate in all these years. And now let me also take you to the results of this very year. Um, as you can see on the screen, we proudly present you the results for the year 2024. All India rank 9, 57, 60, 88, 113, All India rank 118, All India rank 121, 135, 147, 173, 174, and many more. And now I would like to invite Shanu sir, Mr. Priyanshu Raj, the founder of Flames, for his address. So handing over the mic to you, Shanu sir. So very good evening, everyone. This side Sanu, and starting with the new batch, with the new hopes and new excitements, again with the dream. So Flames started in the year 2019, right? 2019 में जगह स्टार्ट हुआ और आज 2025 है. और आई कैन सी दैट कि जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं देन व्हेन यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ अस, तो एक ड्रीम लेकर आते हैं, राइट? और ड्रीम इतनी बड़ी होती है कि आई वांटेड टू गो एनलेस बैंगलोर. उस टाइप ये नहीं कहते हैं कि सानू सर, सानू भैया, हमें एक कोई भी एनएलयू मिलेगा, एनएलयू विशाखापट्टनम जाना है, चाणक्य पटना जाना है. नो, दे आर वेरी क्लियर दैट कि हमें तो एनलेस बैंगलोर जाना है. और आई वाज लिसनिंग टू देम, आई यूज्ड टू लिसन टू देम. ओके ओके, यू हैव टू गो देयर. हमें क्यों जाना है? क्योंकि किसी ने बताया है, या मेरे घर में कोई है, या मैंने सुना है कि एनलेस बैंगलोर बहुत अच्छा है. आई वाज लाइक ओके फाइन, एवरीवन हैव अ ड्रीम देयर लाइफ. हमने कहा और कहाँ जाना है? भैया, आई हैव टू गो टू नालसार हैदराबाद बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम देयर और आई लव दैट प्लेस ड्यू टू एकेडमिक स्कूल. भैया एनएलयू जोधपुर जाना है. तो एक छोटे से एज में जब मैं देखता हूँ कि बच्चे ड्रीम देख रहे हैं, राइट, ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू सम बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ दिस कंट्री, और उस ड्रीम के बीच में तैयारी आती है, प्रिपरेशन आती है, जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं. चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉक्स में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक अलग तरह का एंजाइटी आ रहा है, और फिर डी डे पर जाकर परफॉर्म करके आते हैं.
तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फेनेज। जब कल आप सेलेक्ट हो जाओगे तो सब कहेंगे मेरा बच्चा है, आपकी मम्मा कहेंगे अरे ये तो मेरी बच्ची है, बगल वाली मासी कहेंगे अरे ये तो मेरी बच्ची है, हमारे मोहल्ले का बच्चा है ना। कोचिंग वाले कहेंगे कि अरे ये तो हमारा मॉक दिया था, यार ये तो हमारे पास का बच्चा है, सारे इंडिया कहेगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इट्स लाइक ऑर्फेनेज, कोचिंग अपना मुकर जाएगा। जब फ्लेम्स कहता है कि 80% सिलेक्शन रेट है पिछले 5 साल से, 6 साल से, लास्ट ईयर 85 हो गया, तो 15 से 20% बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ, मतलब कि अभी भी ग्रोथ का बहुत चांस है हमारा। अगर हम कहते हैं कि हमने AR 9 दिया, AR 57 दिया, AR 8 दिया, तो कहीं ना कहीं AR 1 नहीं दिया हमने, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। AR 2 नहीं दिया हमने, तो ग्रोथ हमारे भी चांसेस का है। साथ में हमारा ग्रोथ आपका भी है कि भाई 80% से क्यों नहीं 90% हो जाए, क्यों ना 100% हो जाए, जो कि चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है, चैलेंजिंग है, टाइम ले सकता है, बट हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर मेहनत करेंगे हम और आप मिलकर, हो जाएगा। अभी हमारी पहली बैच आ रही है, जिस बैच का पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम बैच। किसी भी कोचिंग के बैच के नेम से उसका विजन समझ में आता है, जो मैं हर साल कहता हूँ। बैच का नाम कुछ भी हो सकता था, बैच के नाम में आज का जनजी जनरेशन को कूल नेम काफी पसंद है। उस कूल नेम के चक्कर में मैंने कहाँ से APJ अब्दुल कलाम बैच, कलाम बैच लिख दिया। एक यंगस्टर्स को कलाम सर के बारे में पढ़ना चाहिए कि बैच का नाम कलाम क्यों है, और उनकी फोटो लगी हुई है साथ में बच्चों के साथ। तो आपको इस जगह का एक विजन मैं बता रहा हूँ कि ये जगह सिर्फ आपको एक क्लैट की तैयारी नहीं कराएगा। अगर किसी गार्जियन को लगता है कि वे जस्ट गोइंग टू टीच फॉर द क्लैट, नो, फ्लेम्स इज मच बियॉन्ड दैट। सिर्फ क्लैट की तैयारी नहीं होती यहाँ पर, लाइफ लेसन्स काफी ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न दैट हाउ टू लिव ए लाइफ काफी ज्यादा है। कैसे लाइफ में डिसीजन मेकिंग लेना है वो काफी ज्यादा यहाँ सिखाया जाता है। किस तरह से अपने आप को कामनेस रखना है, काम रखना है, शांत रखना है, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ये प्लेस आपको सिखाएगा। पढ़ते कैसे हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आएंगे कि सर मेरे को एनलेस बैंगलोर जाना है। मैंने कहा क्यों पढ़ना है, तो बस जाना है कॉलेज। कैसे पढ़ना है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है। मैं सबसे पहले सिखाता हूँ कि पढ़ाई एक योग है, और सबसे पहले सीखो कि पढ़ते कैसे, हाउ टू स्टडी। पढ़ाई तालीम कैसे की जाती है, सबसे पहले वो सीखना जरूरी है। किताब को छूने से पहले बैठते कैसे हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टडी टेबल कैसा दिखना चाहिए, कितना क्लीन दिखना चाहिए, किस तरह से आप अरेंज करके रख रहे हो अपने किताबों को, और आपसे कितना मोहब्बत है उन किताबों से, ये ज्यादा जरूरी है। या कि किसी X जगह से पढ़ रहे हैं, Y जगह से पढ़ रहे हैं, Z जगह से पढ़ रहे हैं, उतना मैटर नहीं करता है। ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा अपने विजन को लेकर क्लियर हैं, और किस तरह से आप इनिशिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच गार्जियन पेरेंट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आपने इस जगह पे ट्रस्ट दिखाया, एंड दैट समथिंग वेरी बिग कमिटमेंट कि आपने ट्रस्ट दिखाया इस प्लेस पर। और आई विल ट्राई, माई होल फ्लेम्स टीम विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके ट्रस्ट पर खड़े उतरे, क्योंकि एट द एंड कल अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो आप यही पूछेंगे कि सानू ने सिलेक्शन नहीं करवाया, तनिष्का ने ठीक से नहीं पढ़ाया, श्रुति ने सही से नहीं पढ़ाया, निखिल सर ने सही से नहीं पढ़ाया, आप ये कहोगे। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, जो हम पूरा ध्यान लगाएंगे, वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि सिलेक्शन हो जाए। बट नाउ इट्स टाइम टू हैव ए वर्ड विद द गार्जियन, विद द पेरेंट्स, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। क्या क्लास के स्ट्रक्चर होंगे, किस टाइप पे क्लासेस चलेंगी, पर वीक कितनी क्लासेस होंगी, किस तरह से पूरा एकेडमिक रन करेगा, वी विल हैव ए लॉन्ग डिस्कशन। अब मैं गार्जियन से बात करना चाहता हूँ फॉर ए फ्यू मिनट्स, फॉर ए फ्यू कपल ऑफ टाइम, दैट कि आपका बच्चा यहाँ पे कैसे पढ़ेगा, रिगार्डिंग द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, रिगार्डिंग दैट एवरीथिंग। सो आई होप कि एवरीवन इज रेडी फॉर द सेम। एंड मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ये चीज़ों को बंद करता हूँ, ताकि मैं आपसे बढ़िया से बैठकर बात करूँ। अब पूरा का पूरा आपका एल्गोरिदम बताऊँ फ्लेम्स का, किस तरह से पढ़ाई होगी, एक सब्जेक्ट पे कितनी फैकल्टीज है, ठीक है। और हमारा जो सेशन है वो Q&A से स्टार्ट होने वाला है। आई होप रेडी एवरीवन, ठीक है। चल, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल सही। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर्षवर्धन तो हमारे पास आई गेस सुपर 40 से है, हाँ जी सर। काफी इम्प्रूवमेंट है, जी जी सर, वो मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ इसके उसमें। बदलाव है बच्चे में। जी सर, बिल्कुल। कोई कमी है, कोई शिकायत है तो बताइए मैम, क्योंकि 2 महीने हो नो गए इनको। सर, बिल्कुल नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल टीम कि इसको है ना, काफी मैं सिंसियर देख रही हूँ जब से आप लोगों से एसोसिएट हुआ है ये। बदलाव देख रही हैं आप? जी।
ठीक है, इनके बहुत सारी चीजें थी जिनको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा है ये, है ना। थैंक यू सर। हाँ, अभी थोड़ा सा 1 महीने के ऊपर काम करना है अलग से, फिर ये आपको ये परफेक्ट दिखेंगे। थोड़ा सोचते ज्यादा हैं, अब तक कम सोच रहे हैं, हंसते कम है, क्यों ऐसा? नो सर, बहुत ज्यादा हंसते हैं और अभी भी हंसा ही रहे थे मुझे। मैंने कहा कि कहीं मेरा टर्न नहीं आ जाए, प्लीज डोंट मेक मी लाफ। ओके, हमारे सामने। ठीक है मैम, ये क्लासेस कंटिन्यू है, और आप पेरेंट टीचर मीट में हर महीने आते रहना मैम, आपसे अपडेट श्योर। लेते रहना। ठीक है मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। हाउ वाज ओरिएंटेशन मैम, यू लाइक इट? एनीथिंग यू Yes, वांट टू से? yesterday's orientation was very interesting. Thank you, sir. Okay ma'am, I just keep a note of Roshan and we will just work on it, and I will update you regarding the same within 30 days. With Okay, within 30 days. Within 30 days I will give you update. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you so much मैम। ठीक है, ओरिएंटेशन देखा आपने, सुना, कोई सवाल है आपके? वैसे तो कोई सवाल नहीं है, बच्चे में मेरा है टैलेंट सब, लेकिन ओ- कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कुछ बात में। ओके, और कोई चेंजेस? सब कुछ ठीक है, मेहनत कर रही है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है मैम? नहीं नहीं, मेहनत तो वो पूरा करी है, उसने ठान ही लिया है कि मेरे को करना है, मतलब करना है, मेरे पापा का नाम रोशन करना है, मतलब ऐसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सो प्राउड। ओरिएंटेशन सुना सर आपने? सर बहुत अच्छा, इट्स फंटास्टिक. I was listening very carefully. Each and every word was appreciable. Number one, I would like to thank all the faculty team who was in front of us, in front of parents. मतलब आपने सामने ला दिया सबको, क्योंकि मैं भी एक कोचिंग सेंटर रन करता हूँ, तो ओके सर, फैकल्टीज को सामने लाना सर बहुत बड़ी बात होती है, और आप उसको सामने लेके आए, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात तो आपने पेरेंट्स को ही सर्किट में ले लिया, और आपकी एक फैकल्टी मेंबर ने कहा यहाँ पे स्टूडेंट्स की कम खींचाई होती है और पेरेंट पेरेंट्स की की ज़्यादा होती है. ज्यादा होती है जी ये सर। मतलब बहुत डांट खाने वाले हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे. और आपने एक ग्रुप भी बना रखा है जी सर, कि जो पेरेंट्स इनएक्टिव होते हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे. बिल्कुल सर। मैं भी बहुत इनएक्टिव ही हूँ, बट आपने जो कह दिया उससे मैं थोड़ा सतर्क हो गया हूँ. कोशियस, आई एम क्वाइट कोशियस नाउ. जी सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन. इसने मुझे लेट बताया, बट फाइनली आई वाज प्रेजेंट हियर. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग सर। आपको समझ में आई सारी चीजें मैम, कैसे हम लोगों ने हाँ बताया सारी चीज? आई, और आपकी बातें भी अच्छी लगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, बताए हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच मैम, हाँ थैंक यू। ठीक है मैम, समर को जाना है एक अच्छे कॉलेज में, वो चला जाएगा मैम। हाँ। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो अगले साल एक अच्छे कॉलेज में आपको दिखेगा। और वैसे मेरा बेटा भी यहीं से निकला है, आप ही के कोचिंग से। अच्छा मैम, क्या नाम है? साहिल सिंह। अरे मैम, साहिल चाणक्य पटना है लड़का वो? हाँ हाँ। अच्छा, वो आप ही का बच्चा है मैम? हाँ क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगता है मैम। आपको मैं इसी बात पे एक कहानी बताता हूँ कि जी। इस बार हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, नादिया मुर्शी, हाँ। 2021 में आई थी। उनकी छोटी बहन अच्छा। वो उनका बंगाल टॉपर थी, वो कैटेगरी रैंक में बंगाल में उनका एडमिशन हुआ। जी। 1 साल के बाद उनकी छोटी बहन आई आतिया मुर्शीद, हाँ। उनका भी बंगाल में सिलेक्शन हुआ, नीली बंगाल, दोनों बहनें साथ में पढ़ रहे हैं। इस साल उनका छोटा भाई तंजिल मुर्शीद आया है। एक परिवार के 3 पीढ़ियां यहाँ से 3 बच्चे पढ़कर जा रहे हैं। इसी में आपको एक और बताता हूँ, आदित्य गर्ग मेंटर है इनका, वो यहाँ से पढ़कर गया एनयू जोधपुर। उनकी बहन आई रिद्धि गर्ग, वो गई पीयू यूनिवर्सिटी। उनकी छोटी बहन आई मनसिका गर्ग, इसी साल आई थी पढ़ने, वो भी गई एनयू जोधपुर। 3 पीढ़ी हो गई। छोटे से भाई आदित्य गर्ग के भी आने वाले, चौथी पीढ़ी आने वाली है, चौथे जैसा आने वाला जो है पढ़ाने वाला। हाँ। एक ऐसा कोचिंग जहां से जनरेशन के लोग आ रहे हैं, छोटे भाई बड़े भाई। तो साहिल के भाई हो समर? यस सर. चलो, चाणक्य पटना है साहिल, साहिल को कहना मैंने याद किया है। ठीक है, वो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। और साहिल भी काफी तारीफ करता है आप लोगों का, मतलब एडमिशन लिया उसके पहले से वही हमको बोला, नहीं हमको यहीं पे ज्वाइन करना है। और अभी भी बोलता है कि हाँ इसको भी, मतलब ये तो खैर इसका छोटा, उसका छोटा भाई है तो बहुत कुछ। और जितना वो तारीफ आप लोग का करता है, बताता था सब कुछ, उससे ज्यादा अच्छा चलिए, लगा अभी हमको। चलिए, मतलब थैंक यू सो मच मैम, इतने बड़े बड़े शब्द हैं। ठीक है, अच्छा लगता है मैम जब कोई यहाँ से पढ़ कर जाता है। अभी देखिए हमारे सामने बैठे हुए हितेन नीलानी और प्रार्थना नीलानी,
इनकी बड़ी बहन मान्या गुरनानी इस जगह से पढ़कर गई हैं, जेएनएलयू में थी, और आज उनके दोनों छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं। तो देख कर अच्छा लगता था, जब सब परिवार के लोग पढ़ते हैं हाँ तो लगता है कि हम लोगों ने कुछ समाज के लिए किया, कंट्रीब्यूट किया, जब परिवार के तीन तीन लोग, तीन तीन जनरेशन के लोग पढ़ रहे हैं यहीं पर हर साल पर साल। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द फाइनल पाथ, आई गेस अब हम सेशन कंक्लूड कर रहे हैं।